So yes, we have got Mr. Kalyanji, who is a very old resident of Darjeeling city, this beautiful Darjeeling city, and he has the eternal treasures of divine secrets of the overall economy of Darjeeling and how it is helping to boost the entire national economy as well as the international economy to a very great extent. And this is really very impactful for the entire mankind, because the main component which is used throughout the household sector, not only of our own country, that is India, and not only even Asia Pacific, but even in fact the entire globe. And that main component which is used for consumption is tea. And yes, coffee is also under the component, but here we are discussing about tea, be it the green tea, black tea, or the milk tea. So here we hand over to Mr. Mr. Kalyanji, who is going to disclose the eternal thing which is actually governing the overall economic cycle for this particular component, this particular integral component, that is tea. And how is Darjeeling playing a very crucial and integral role to help the overall national economy as well as the international economy to run very smoothly. So yes, Mr. Kalyanji, please help us to know this fact. दार्जिलिंग का जो चाय पत्ती है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा चाय पत्ती और सबसे एक्सपेंसिव चाय पत्ती उगाता है दार्जिलिंग में. You don't believe 99% of population of Darjeeling, they either depend directly or indirectly upon tea and tourism. 99% population of Darjeeling. So दार्जिलिंग का जो चाय पत्ती होता है उसका जो एरोमा होता है वो सबसे अच्छा होता है एंड इट हैव गॉट लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट. दैट्स व्हाई इंटरनेशनल टी मार्केट में दार्जिलिंग का चाय सबसे महंगा बिकता है. तो जो चाय कंपनी है पहले तो गवर्नमेंट रन करता था आफ्टर इंडिपेंडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हैंडेड प्राइवेटाइजेशन कर दिया. तो अभी बहुत सारा कंपनीज है जैसे गुडरिक कंपनी, आपका जयश्री कंपनी एंड लॉर्ड ऑफ कंपनीज आती है. तो जो उन लोग का चाय उगाता है तो वो कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है उसका 48% उन लोग को इंटरनेशनल टी मार्केट में वो उसको बेचना पड़ेगा, मतलब ऑक्शन करना पड़ता है. तो एक बार क्या हुआ, दार्जिलिंग का चाय पत्ती जो है वो 12 लाख पर किलो तक सेल हुआ और वो चाय पत्ती था मकई बारी टी गार्डन का चाय पत्ती था 12 लाख. और 2014 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम दार्जिलिंग टी ऑफिशियली प्लेयर्स को सर्व किया था और वो भी मकई बारी टी गार्डन का मतलब था फीफा वर्ल्ड कप में. यू कैन चेक आउट इन गूगल ऑल्सो. तो इसीलिए दार्जिलिंग का जो चाय पत्ती होता है एक्चुअली इट इज नॉट ड्रिंक विथ सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क. उसको ऐसा ही पीना है. That is a black tea? That is a black tea, okay, without milk tea, ठीक है. तो इसको पीने से बहुत सारा आप लोग को हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा इसमें. तो इसमें एंटी एजिंग का काम भी करता है. That's why ये बहुत सारा इंटरनेशनल टी मार्केट and it boosts the overall immunity, sir. Overall immune system के लिए बहुत helpful होता है. ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका हार्ट का डिजीज नहीं होता है, ठीक है, आपका प्रिकॉशन लेता है. तो ये इसीलिए दार्जिलिंग का टी बहुत ये अच्छा है और ये आपको माइंड भी बहुत रिलैक्स कर देता है. That's really, yes. I wish to tell my own personal experience here, because yes, when I had this tea here for the first time in my life, because I never ever preferred black tea in my entire tenure of lifetime till now, because I used to think that it's very bitter. I didn't ever have it. But when I came here, I was offered this as the welcome drink in a hotel in Darjeeling, the 2 hotels in which I had checked in. So it was really beautiful. I didn't know that it was the black tea. But Mr. Kalyanji ने बताया that it's the black tea. मुझे तो लग रहा था कि वो कावा है, because in Kashmir when I went there we were served the kesar drink that is the kava. It had the similar taste but वो इतना एरोमेटिक था जो मैंने यहाँ लिया, एंड इट एडेड overall
मतलब द सोल के लिए इतना रिलैक्सिंग एज सर हैव डिस्क्राइब्ड इट्स ब्यूटीफुल क्वालिटीज. अब मुझे आज ही पता चला दैट इट्स called the black tea. But yes, it's so beautiful, and yes sir is saying कि उसको milk, it is much better than the milk tea. तो yes, it's yes sir. So that's the thing. आप एक इंटरनेशनल वाली चीज़ भी बता रहे थे, इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए. जी हाँ, मतलब ये जो चाय मैंने बोला आपका 42%. जी हाँ, मैंने बोला था 42% इट मस्ट बी सोल्ड इन इंटरनेशनल टी मार्केट. सो मैंने आई टोल्ड यू ऑल ईयर एंड इन विच ईयर आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर दार्जिलिंग टी वाज उसका बीट हुआ था 12 लाख तक गया था. मैं बोला इसलिए बोला था. जी हाँ. तो दूसरी बात जो इसका प्रिपरेशन कैसा करना है, जैसे आपका वाटर बॉईल कर दीजिए फॉर अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक पूरा उबाल दीजिए. तो बॉईल हुआ वो वाटर एक कप में डाल दीजिए और वो कप में इतना ही सा टी लीव्स डाल के ढक दीजिए फॉर 10 मिनट्स. देन हैव ऐसा ही विदाउट सॉल्ट, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क. दैट टाइम यू नो द फ्लेवर एंड आपका ना एनर्जी जैसा फील हो जाएगा, इतना रिलैक्स फील हो जाएगा. बहुत अच्छा है ये, मतलब ये इसीलिए दैट्स व्हाई द दार्जिलिंग टी इज सो मच फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड जो है आपका मिल्क का जो पीता है चाय पत्ती, एक्चुअली दार्जिलिंग वो प्रोड्यूस नहीं करता है. इट्स कॉल्ड CTC चाय पत्ती, गोल वाला पत्ती, वाताज. यस. तो वो ज्यादातर प्रोड्यूस होता है असम में. दार्जिलिंग में ये वाला चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है. और बहुत सारा वेराइटीज है चाय पत्ती का, बहुत सारा वेराइटीज है. ब्लैक टी, ग्रीन टी, जब ऑक्सीडाइजेशन करता है ना उस टाइम, ये प्रोसेसिंग जब होता है उसमें है. जो कम ऑक्सीडाइज करता है वो ग्रीन टी होता है, उसमें भी बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है. इवन आपका वेट आपको घटाना है, if you want to lose your weight, that time you can have green tea in empty stomach every day. Okay, that will be very, they have got lot this type of benefits. Yes, sir, in Darjeeling the green tea is also produced, or only black tea? Yeah, green tea is produced. Okay. Along tea is produced. Which one? Along tea. Along tea means it's a handmade tea. All right. It is not processed in the machine. It is made by hand. And like the tea garden which we are visiting today, that is like Gopal Dhara tea garden, and the one which we visited I think 2 days ago, the Kanyam tea garden, जो इस नेपाल. तो यहाँ पे सारी teas manufacture होती हैं, like farming होते हैं उन सब का, like black tea, green tea, milk. ये सारा नहीं होता, लेकिन milk tea नहीं बनता है, बस सारा टी बन जाता है. ऑलंग टी, सिल्वॉक्स टी, ये भी आपका ना अभी जो मिनिमम बाग बकरी चाय होता है. नहीं ये वाला नहीं होता है. ओके, वो असम के हैं. असम का है वो सारा. तो जैसे हम लोग को तो आदत है चाय माने हम लोग शक्कर और दूध के साथ, शक्कर, दूध, इलायची, सौंफ ये पीते, मगर दार्जिलिंग का टी ऐसे नहीं पीते. अच्छा, ओके, करेक्ट. Chalo, that's eternally beautiful secret which we have come to know, and this is really going to be very, very helpful for us because tea is such a common item and it is such a usual item which is used in our daily life. Whether we are in office, we are at home, it is the most common thing which is used and the most important integral thing. And हम चाय को usually associate करते थे gastritis के साथ कि अगर गैस हो जाता है, acidity हो जाता है, तो we should lower the consumption of tea. But here on the contrary, the Darjeeling tea is eternally the darling tea for the soul because we have come to know the beautiful qualities about the tea here. So let's experience the soothing aromatic tea and let's enlighten our kitchen with this beautiful tea henceforth. And yes, अब हमें beautiful gardens से हम go through कर रहे हैं. We are heading towards Gopal Dhara tea garden. And yes, यहाँ पे रास्ते में yes, it's very foggy, but yes, हम जो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है ना, नीचे सारे प्लेटर्स आई थिंक टी गार्डन्स के हैं सर, है ना. यहाँ पर पाइन ट्रीज है. अच्छा, पाइन ट्रीज है नीचे, क्योंकि कल वी वेंट टू द रोपवे एक्सपीरियंस, तो सारे प्लेटर्स जो भी थे वो सब. तो टी लीव्स होता है ना, वो ज्यादातर आपका हाई एल्टीट्यूड में भी होता है. मगर जो लोअर एल्टीट्यूड जैसे आपका 4000 फीट 5000 फीट वाला जो हाइट है, उसमें चाय पत्ती और अच्छा उगता है एक्चुअली. हाँ, बिकॉज व्हेन वी वेंट फॉर द रोपवे एक्सपीरियंस यस्टरडे, तो उसमें नीचे तक कितने 5 किलोमीटर के तक नीचे गए तो पूरा वो टी गार्डन से कवर्ड था, सारे जो मीडोज. अच्छा, तो वो सब पूरा टी प्लांटेशन था. यस,
So that's all, my dear guys. So let's learn something beautiful from this video. And you see that the pine trees आपको इसमें इतना visible नहीं होगा because it's quite foggy. चलो, yes, take care and goodbye from Darjeeling. God bless you. Take care.